وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، صبح سے ہم لوگوں نے دیکھا پورے ملک میں خوشی کا ماحول ہے، اور ہندوستانوں کے لیے آج کا دن یعنی 15 اگست کا یہ دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا. اس لیے آج کا دن پورے ملک میں خوشی کا ماحول ہم نے دیکھا. وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دن کے لیے اگر سب سے بہتر اگر کوئی ٹاپک اور موضوع ہے تو یہ ہے کہ یہ ملک آزادی کی منزل تک کیسے پہنچا. آزادی حاصل کرنے کا صحرا جن لوگوں نے اپنے سروں پہ باندھ رکھا ہے، ان لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا جتنا ہمارے اسلاف نے خون بہایا اس ملک کے لیے. اس لیے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، اور خاص طور پر علماء اہل حدیث کا، اہل حدیثوں کا. اور ہر سال آپ دیکھیں گے اگست کی 15 تاریخ جب نزدیک آتی ہے تو کہیں دوستوں گلی نکڑ پہ جلسہ منعقد کر کے اور کہیں اس طرح کے خطبہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے اس موضوع پر علماء ضرور روشنی ڈالتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو 3 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ یہ جو نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ ان کے اسلاف نے، ان کے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. اور دوسرا سبب ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھے. ہم ہر سال اس موضوع کو اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ تاریخ کو یاد رکھے. اس ملک میں تاریخ کو مٹانے والے، تاریخ کو بگاڑنے والوں کی کمی نہیں ہے. ہم ہر سال اس موضوع پر علماء اس لیے روشنی ڈالتے ہیں کہ جو تاریخ کو مٹانے والے ہیں انہیں ہمت نہ ہو سکے کہ مسلمانوں کے ماضی کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں اور کھیل سکیں. اور تیسرا سبب اس موضوع کو رکھنے کا یہ ہے کہ رہ کر اس ملک کے جو فرقہ پرست یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کو مٹا دینا چاہیے، مسلمانوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اس موضوع کے ذریعے ہم ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ وسوسہ بار بار جو تمہارے دلوں میں آتا ہے اس وسوسے کو نکال دو.
اور یہ خواب دیکھنا بند کر دو, کیونکہ یہ ملک اسلام کے بغیر بے نور ہو جائے گا. اگر اس سرزمین کو مسلمان چھوڑ دیں تو یہ سرزمین روئے گی اور مسلمانوں کو تلاش کرے گی کہ وہ مسلمان کہاں ہیں جنہوں نے مجھے اپنے خون سے سینچا تھا. یہ آسمان روئے گا اور تلاش کرے گا کہ وہ مسلمان کہاں ہیں جن کی ہزاروں قربانیوں کی داستانیں اور مثالیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرات, اس موضوع کے ذریعے ملک کے ایوانوں تک اور فرقہ پرستوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں اس موضوع کے ذریعے کہ اس ملک میں جو بار بار تم یہ نعرہ لگاتے ہو, یہ آزادی حاصل کرنے کا صحرا جنہوں نے اپنے سروں پہ سجا رکھا ہے, انہوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا اس ملک کے لیے جتنا ہمارے آبا و اجداد نے خون بہایا ہے. آج بھی سرزمین ہند کی اس مٹی کو اگر نچوڑو گے, ہمارے آبا و اجداد کا لہو ٹپکائے گی, ہمارے آبا و اجداد کا خون ٹپکے گا اس مٹی سے. آج بھی سرزمین پہ ہم سجدہ کرتے ہیں, اللہ کی قسم ہمارے آبا و اجداد کے خون کی مہک آتی ہے. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. حضرات, اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ ہے, سچ ہے کہ جنگ آزادی ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر لڑی ہے, اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جنگ آزادی اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کے لیے جو قائدانہ رول ادا کیا ہے, کمانڈنگ جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ مسلمان تھے. اور یہ بات یاد رکھنا, جنگ آزادی کی تاریخ ایسا نہیں کہ 40 یا 50 سال پر محیط ہے, نہیں, جنگ آزادی کی تاریخ 200 سے 250 سال پر محیط ہے. 200 سے, لوگ کیا کہتے ہیں, 1857 میں جنگ آزادی کی پہلی لڑائی لڑی گئی, آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی گئی, اور 1947 میں ملک آزاد ہو گیا. بہت بڑی غلطی ہے یہ, بہت بڑی تھا. یہ سیاستداں غلطی کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم نے تاریخ پڑھی ہے, 200 سے 250 سال پر آزادی کی تاریخ محیط ہے. اور یہ 200 سے 250 سال میں جن لوگوں نے کمانڈنگ کی ہے, جن لوگوں نے قائدانہ رول ادا کیا, مسلمان ہیں. کیوں مسلمانوں نے کمانڈنگ کی؟ اس لیے کہ اس ملک میں انگریزوں کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے. انگریزوں نے اس ملک میں جو حکومت چھینی ہے, تخت و تاج چھینا, مسلمانوں سے چھینا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے اس ملک میں داخل ہوئے, دھیرے دھیرے مسلمانوں کے تخت و تاج پہ قبضہ کیا. انگریزوں نے جن سے حکومت چھینی, جن سے تخت و تاج چھینا, وہ مسلمان تھے. اسی لیے دوستو, اکثر مرحلوں میں کمانڈنگ مسلمانوں نے کی ہے. اور اس ملک کی تاریخ اس بات کو یاد رکھے کہ جنگ آزادی کے سلسلے میں جتنی ابتدائی کوششیں ہوئی ہیں تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے. اس ملک میں سب سے پہلے 1750 سے پہلے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا جو کام کیا, مسلمانوں نے کیا ہے. اس ملک کا مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز 3 کتابوں سے بڑا ڈرتا تھا, 3 کتابوں سے بڑا ڈر لگتا تھا. کون سی؟ سید اسماعیل شہید کی تقویت الایمان, اور ملفوظات سید احمد شہید, سید احمد شہید کی کتاب ملفوظات, اور تیسری شرح وقایہ کا کتاب الجہاد. ان 3 کتابوں سے انگریز بڑا ڈرتا تھا. اور تقویت الایمان کو آپ دیکھیں گے نا, واللہ کہیں اس میں جہاد کی بات نہیں ہے, کہیں بھی جہاد کی بات نہیں ملے گی. تقویت الایمان میں کیا ہے؟ تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل شہید نے توحید اور توحید کے تقاضوں کے اوپر بحث کی ہے. شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا ہے, اور انگریز جانتا ہے کہ توحید سب سے بڑی طاقت ہے, اور اہل حدیثوں کے پاس توحید ہے. توحید جس قوم کے پاس ہو, جس قوم کا عقیدہ شرک کی غلاظت و گندگی سے پاک ہو, انگریز جانتا ہے کہ اس قوم کا کبھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اس قوم کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا. اس لیے انگریزوں کو تقویت الایمان سے بڑا ڈر لگتا تھا. اس ملک میں انگریزوں کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے, اور ابتدائی جنگ آزادی کے سلسلے میں جتنی کوششیں ہوئی مسلمانوں کی طرف سے ہوئی. یہ اس ملک کی تاریخ اس حوالے کو یاد رکھیں. اور میں جنگ آزادی کی تاریخ کو شروع کرتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یاد رکھنا, اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دنیا سے جانے کے بعد یہ جذبہ اپنے فرزندوں میں دے گئے,
अपने बेटों को ये जज्बा दे के गए। और इस मुल्क की तारीख ये बात भी याद रखे, इस मुल्क में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद दहलवी के बेटे अब्दुल अजीज रहीमाबादी मुहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का। और फिर आगे बढ़िए, 1753 में मुर्शिदाबाद और बंगाल में अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के नाना थे, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। और फिर 1799 में जुनूब हिंद के शहर मैसूर में टीपू सुल्तान उनके वालिद हैदरी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। और फिर 1825 में तारीख शहीदैन सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद की तारीख ने तो पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की रूह फूंक दी और हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा कर दिए। और ये मुल्क इस बात को याद रखे, जहां तक मेरी बात पहुंचे, इस मुल्क को जो अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली है, और अगस्त की 15 तारीख को तुम जो आजादी की खुशियां मनाते हो ना, ये मुल्क को जो आजादी मिली है वो तहरीक शहीदैन के नतीजे में, सैयद इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद की तहरीक के नतीजे में आजादी मिली है। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं मौलाना, जब 1750 में अंग्रेजों के खिलाफ जहन साजी का काम हुआ, जब 1750 से पहले अंग्रेजों को भगाने का काम शुरू हुआ, तो मुल्क को आजाद होते 200-250 साल क्यों लगे? इतना वक्त क्यों लगा? हाय, जब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है और नाला करता हूं तो अंदेशा रसवाई है। लोगों, हकीकी बात क्या है मालूम है? सच तो यह है कि हमने हमेशा अपनों से शिकस्त खाई है, हमने हमेशा उन मुनाफिकों से शिकस्त खाई है जो हमारी सफों में रहते हुए घर का भेदी लंका ढाई का किरदार अदा करते हैं। सच बात है, मुल्क 1947 में आजाद हुआ, 2025 में हम हैं। मुल्क को आजाद हुए 75-80 साल हुए, लेकिन याद रखना, यकीन मानो कि यह मुल्क 200-150 साल पहले आजाद हो चुका होता अगर मुर्शिदाबाद और बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ नीम जाफर की बगावत न होती, अगर जुनूब हिंद में टीपू सुल्तान के साथ मीर सादक की बगावत न होती, अगर बंगाल में बेगम हजरत महल के साथ नेपाल के गोरखों की बगावत न होती, अगर सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद इन तहरीक शहीदैन के साथ अफगानिस्तान के सरहद के पठानों की बगावत न होती, तो ये मुल्क 200-150 साल पहले आजाद हो चुका होता। लेकिन इन खाइनों ने, इन गद्दारों ने, इन मुनाफिकों ने अंग्रेजों से तालमेल करके अपने जमीर का सौदा किया, अपने जमीर को बेचा। हजरत, आजादी की मंजिल तक ये मुल्क ऐसे नहीं पहुंचा है, आजादी की मंजिल तक इस मुल्क के मुसलमान ऐसे नहीं पहुंचे हैं। खून के समंदर तय किए हैं, खून के समंदर, कैदो बंद की सौबतों का सामना किया है, काला पानी की आजमाइशों का सामना किया है, तख्ते दार पे चढ़ाए गए हैं। अरे मुसलमानों की जायदादें जब्त हुई हैं मुल्क को आजाद कराने के लिए। तारीख बताती है 200 साल की ये तारीख लहू से रंगीन तारीख है, 200-250 साल की ये तारीख खून से भरी हुई तारीख है। तारीख बताती है कि जब कभी तख्तेदार ने पुकारा, तारीख बताती है कि जब कभी आजमाइशों ने पुकारा, जब कभी इम्तिहानात ने पुकारा, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी कदम पीछे नहीं हटाया। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा आगे बढ़ता रहा सीना तान कर, और ये कहते हुए शायर की ज़बानी के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आए शहीद मुल्क को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गहर की महफिल में है। खींच कर लाई है मुझको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है मुझको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमगट कूचा कातिल में है। ऐ वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये अल्फाज तो एक शायर के हैं, ये मिसरे तो एक शायर के हैं, ये कलाम तो एक शायर का है, लेकिन जज्बा हिंदुस्तानी मुसलमान और मुजाहिदीन आजादी का है। हाँ, एहसासात हिंदुस्तानी मुसलमान और मुजाहिदीन आजादी के हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं वाकयात की रोशनी में, ये जो आजादी का सहरा हासिल करके झंडे के जो फूल अपने ऊपर गिराते हैं ना, ये मुल्क को आजादी कैसे मिली। आइए वाकयात की रोशनी में देखो, बड़ी अलमनाक तारीख है, बड़ी अलमनाक तारीख है। आखिरी मुगल बादशाह
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनकी शहादत पर इस मुल्क में मुसलमानों की 852 साल हुकूमत का खात्मा हुआ, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, कैद किया और कैद करके उनकी आंखों के सामने उनके 4 शहजादों को ज़िबा किया। अल्लाह अकबर। उनकी आंखों के सामने उनके 4 बेटों को अंग्रेजों ने ज़िबा किया। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून के कैद खाने में कैद करके रखा, रंगून का कैद खाना। हाय, बहादुर शाह जफर ने अपने जख्मों को, अपने पीड़ा और अपने दुख को अल्फाज की शक्ल दी है, अशार की शक्ल दी है। बहादुर शाह जफर की वो गजल बड़ी मशहूर है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिल सकी कोहे यार में। अल्लाह अकबर। कहा जिस हिंदुस्तान, जिस वसी और अरीज हिंदुस्तान पे मैं हुकूमत करता था, बहादुर शाह जफर कह रहे हैं, जिस हिंदुस्तान पे मैं हुकूमत करता था, आज वो हालत है कि इस सरजमीन पे 2 गज जमीन भी मुझे मयसर नहीं दफन होने के लिए। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कोहे यार में। हजरत मोहानी कौन है? उर्दू अदब के मशहूर शायर हजरत मोहानी। अंग्रेजों से बगावत के जुर्म में हजरत मोहानी को अंग्रेजों ने कैद किया, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। हजरत मोहानी को अंग्रेजों ने जेल में चक्की पीसने की सजा सुनाई। चक्की पीसते पीसते उनके हाथ छल हो चुके थे, हाथ उनके फट चुके थे, उंगलियों से खून बह रहा था। हजरत मोहानी के उंगलियों से खून बह रहा है। चक्की की मशक्कत को झेलते हुए जेल के वार्डन से कोलसा लेते हैं, जेल के वार्डन से कोयला लेकर जेल की दीवारों पे अशार लिख रहे हैं कि हाय मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, हाय मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुर्फे तमाशा है हसरत की तबीयत भी। का कैसी जिंदगी है, अंग्रेजों के जुल्म को भी बर्दाश्त कर रहा हूं, चक्की भी पीस रहा हूं और अशार भी लिख रहा हूं। हाय मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुर्फे तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हजरात, मैं जंग आज़ादी की बात कर रहा हूं। अगर मैं उलमाए सादिकपुर का तज़किरा न करूं, जंग आज़ादी की तारीख नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। कौन है उलमाए सादिकपुर? पटना का एक मोहल्ला है सादिकपुर, पटना का पुराना नाम है अजीमाबाद, अजीमाबाद का एक मोहल्ला है सादिकपुर। अरे अल्लाह का फजल है इस मोहल्ले पर, सब के सब खानदानी अहले हदीस, पूरा का पूरा मोहल्ला सादिकपुर खानदानी अहले हदीस थे। और उलमाए सादिकपुर को यह एजाज हासिल है कि इन्होंने 1 सदी तक, 100 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद को बुलंद रखा। 100 साल तक हर मरने वाला अपने बेटे को वसीयत कर जाता, बेटा इस अलम जिहाद को कभी गिरने मत देना जब तक इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी न मिल जाए, तब तक अलम जिहाद को, यह मुल्क हिंदुस्तान जब तक रहेगा उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को न भुला पाएगा, न फरामोश कर पाएगा। आपको मालूम है उलमाए सादिकपुर को अंग्रेजों ने कितना बड़ा जख्म दिया, कितना बड़ा जख्म। ईद का दिन आया सादिकपुर के इस मोहल्ले में, और ईद का दिन किस शक्ल में आया मालूम है? पूरा सादिकपुर का मोहल्ला ईद की खुशियां मना रहा था। उलमाए सादिकपुर ईद की खुशियां मना रहे थे और अंग्रेज बुलडोजर लेकर आता है, बुलडोजर लेके आता है, पूरे सादिकपुर के मोहल्ले पर बुलडोजर चला देता है। सादिकपुर के मोहल्ले में कोई घर न बचा, सारे घर मिसमार कर दिए गए, ढा दिए गए, गिरा दिए गए। उलमाए सादिकपुर को अंग्रेजों ने यह जख्म ईद के दिन दिया, ईद के दिन उनके साथ ये तमाशा हुआ है। और उलमाए सादिकपुर के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवाही में तकरीर के आखिर में पेश करूंगा। हजरात, मैं हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के अगर किरदार की बात करूं तो आइए काला पानी का भी तज़किरा करता चलूं। काला पानी क्या है? काला पानी जजीरा अंडमान में जो बेआबाद जजीरे थे वहां अंग्रेजों ने जेल बना रखा था, कैद खाने बना रखे थे, और वहां काला पानी की सजा होती थी मुसलमानों को, काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा इतनी खतरनाक, इतनी खतरनाक कि फांसी की सजा तो उसके सामने मामूली है। फांसी की सजा में थोड़ी देर इंसान तड़पता है, फिर दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है। लेकिन काला पानी की सजा, आप उस किताब को पढ़ लेना, रूह कांप जाएगी। काला पानी, और इस मुल्क की तारीख ये बात
बात भी याद रखे कि अंग्रेजों ने जिनको काला पानी की सजा दी 95% मुसलमान थे, 95% मुसलमान थे, और उन मुसलमानों भी खुसूसियत के साथ उलमाए अहले हदीस थे। उलमाए सादिकपुर, मौलाना जाफर थानीसी, मौलाना विलायत अली, मौलाना यहया अली कौन है? उलमाए सादिकपुर, उलमाए अहले हदीस हैं। सबसे ज्यादा सादिकपुर के उलमा को काला पानी, उलमाए अहले हदीस को काला पानी की सजा दी। और काला पानी की सजा इतनी खतरनाक थी, इतनी अलमनाक थी कि बाज गैर मुस्लिमों की हिम्मत जवाब दे गई काला पानी की सजा को देकर, हिम्मत जवाब दी गई। अच्छा, स्कूल में जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती है उसमें एक मुजाहिदीन का नाम, एक मुजाहिद का नाम नुमाया लिया जाता है, जैसे उसने पूरे मुल्क को अकेला आज़ाद कराया हो। कौन था? ब्राह्मण था, वीर सावरकर। वीर सावरकर, हाँ, आपको मालूम है इनका नाम हर किताब में नुमाया नजर आता है। वीर सावरकर की दोस्तों दास्तान तो यह है कि जब इसने काला पानी की सजा देखी तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई, वीर सावरकर की हौसला इसका जवाब दे गया। उसने 1920 में अंग्रेजों को खत 3 खत लिखे कि अगर मुझको काला पानी की सजा से निजात देते हो, अगर मुझे इस कैद खाने से निकालते हो तो मैं तुम्हारा वफादार बन के रहूंगा। अंग्रेजों से कहा, मैं मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ काम करूंगा। और 1922 में अंग्रेजों ने वीर सावरकर को उस काला पानी की सजा से निकाला। और 1922 के बाद वीर सावरकर अंग्रेजों की वफादारी करते रहे और मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ काम किया और गांधी जी के खिलाफ हर तहरीक में उसने हिस्सा लिया। हाँ, अब एक तरफ काला पानी की सजा में हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के किरदार को देखो, और दूसरी तरफ उलमाए सादिकपुर और मुसलमानों के किरदार को देखो। उलमाए सादिकपुर ने काला पानी की सजा को बर्दाश्त किया और मुद्दत सजा मुकम्मल करने के बाद एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है काला पानी, और दस्तयाब आज बाजारों में मिल रही है, खरीद के देखिए कैसी वहशत और अलमनाक सजाएं दी जाती थी। हजरात, मैं हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर मुसलमानों के किरदार की बात करूं तो मलीबार के मुसलमानों को कैसे छोड़ दूं? मलीबार में मुसलमानों का एक तबका था जैसे मौपला मुसलमान कहा जाता है, मौपला मुसलमान। अली मुसनियार को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो मौपला मुसलमान खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से बगावत कर दी, अंग्रेजों के खिलाफ नारे बुलंद किए अली मुसनियार को जब गिरफ्तार किया। आपको मालूम है मौपला मुसलमानों में से केरला का एक शहर है तिरूर, केरला के शहर तिरूर से अंग्रेजों ने मौपला मुसलमानों में से 125 मुजाहिदीन आज़ादी को गिरफ्तार किया। कितने? 125 मुजाहिदीन आज़ादी को। क्यों गिरफ्तार किया? इसलिए कि इन्होंने अंग्रेजों से बगावत की है। अब इनको केरला के शहर तिरूर से ले जाना है मद्रास, चेन्नई ले जाना है। क्यों? वहां पर कोर्ट है, अंग्रेज जज इनको सजा सुनाएगा। आपको मालूम है इन मुसलमानों को तिरूर से मद्रास कैसे ले जाया गया? मौरखीन लिखते हैं कि उस वक्त की जो मालगाड़ियां होती थी, ट्रेन की जो मालगाड़ियों का डब्बा होता था, एक डब्बे में 125 मुजाहिदीन आज़ादी को ठूसा गया, जबकि उस डब्बे में मौरखीन कहते हैं कि बमुश्किल 50 लोग सवार हो सकते थे। 50 लोग सिर्फ सवार हो सकते थे, 50 की जगह पर 125 मुजाहिदीन आज़ादी को ठूसा गया। बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया गया और अंदर हवा आने के लिए कोई खिड़की नहीं, कोई दरीचा नहीं, कोई जगह नहीं। सोचो तो सही क्या गुजरी होगी इन मुजाहिदीन आज़ादी पर। हाँ, और अंदर आपको मालूम है सफर भी कैसा था? आज की तरह नहीं कि तिरूर सुबह से निकले शाम चेन्नई आ गए, नहीं नहीं नहीं। आज तो ट्रेनें बिजलियों से चलती है, उस वक्त ट्रेनें रेलती हुई चलती थी। सुबह अगर तिरूर से निकले, उस जमाने में ट्रेनें निकली थी तो तिरूर, सीलम, कोयम्बटूर के रास्ते से होकर ट्रेन को चेन्नई पहुंचते 2.5 से 3 दिन लगते थे। उस जमाने में 2.5 से 3 दिन लगते थे। अब आप सोचिए 125 को ठूसा गया है जहां 50 लोगों की जगह है, अंदर न खाना है, न पानी है, हवा आने की जगह नहीं। क्या गुजरी होगी मुजाहिदीन आज़ादी पर, क्या गुजरी होगी। मौरखीन कहते हैं कि जब बीच में ट्रेन को खड़ा करके उस डब्बे को खोला गया, दरवाजे को, तो क्या देखा जाता है? 65 जानें जा चुकी हैं। मुजाहिदीन आज़ादी भूख से तड़प कर एक दूसरे को खाने लगे थे, एक दूसरे को नोच नोच के खा रहे थे। 65 जानें जा चुकी थी और बाकी जो बचे थे वो भी नीम मुर्दा हालत के हो चुके थे। और ऐसी हालत में अंग्रेजों ने इनको मद्रास पहुंचाया। वहां अंग्रेज जज बैठा था कुर्सी पर, आधे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई और आधे लोगों को मौत की सजा सुना दी। केरला हुकूमत ने 1971 में जब मुल्क आजाद हो गया 1947 में, तो 1971 में केरला हुकूमत ने मौपला मुसलमानों
की कुर्बानियों को तस्लीम किया और तस्लीम करते हुए उनके जो रिश्तेदार बाकी जिंदा बचे थे उनके लिए वो पेंशन जारी किया जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए जारी की जाती है। कहला हुकूमत का एक रोशन बाब है हजरात, बड़ी रोशन तारीख है। और मुजाहिदीन आज़ादी तो बहुत है, मैं किन का जिक्र करूं, कितनों का जिक्र करूं। बाद लोग मुजाहिदीन आज़ादी ऐसे जिनको हुकूमत, जिनको तारीख फरामोश कर चुकी है। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? हिंदुस्तान के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। हिंदुस्तान में इल्म हदीस की जितनी सनदें पाई जाती हैं मियाँ साहब से होके गुजरती हैं। हिंदुस्तान के अमीरुल मोमिनीन, यहाँ तक कि सऊदी अरब के लोग आकर इनके पास हदीस पढ़ते थे, मियाँ नज़ीर के पास। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, इनका मदरसे हदीस दिल्ली में मौजूद था। अंग्रेज इनके मदरसों पे हमला करता था, वहाँ से उलमा को गिरफ्तार करता था। यहाँ तक कि इन गिरफ्तार होने वालों में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मियाँ साहब खुद मौजूद थे। और मियाँ नज़ीर हुसैन को अंग्रेजों ने रावलपिंडी की कैद में 1 साल कैद करके रखा, रावलपिंडी की जेल में 1 साल तक। और हजरात इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद, इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद, हाय इस मुल्क ने इतना अजीम इंसान नहीं देखा होगा। हाँ, ऐसा दानिश्वर, हाँ ऐसा साहिब बसीरत, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना दूरअंदेश इंसान जो अपनी जगह पर एक मुवाहिद, एक मुफस्सिर, एक मुहद्दिस, इतना बड़ा दानिश्वर इस हिंदुस्तान ने इतना अजीम इंसान नहीं देखा था। आपको मालूम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जिंदगी का मिनट मिनट कीमती था, मिनट मिनट कीमती था। हाँ, आपको मालूम है अंग्रेज कभी इनकी जबान को लगाम देना चाह, कभी इनकी कलम को लगाम देना चाह, कभी उनकी फिक्र को लगाम देना चाह, कभी उनके पर्चे अल हिलाल पर पाबंदी लग रही है, कभी उनके मजल्ले अल बलाग पर पाबंदी लग रही है, और कभी तो मौलाना खुद को उठाकर, मौलाना आज़ाद को उठाकर जेल में डाल दिया जाता। अहमदनगर का कैद खाना आज भी है, अहमदनगर का कैद खाना आज भी महफूज है जहां मौलाना को बार बार कैद किया जाता था। हाय, जिस इंसान की जिंदगी का मिनट मिनट कीमती था, उस इंसान की जिंदगी के 15 साल अहमदनगर के कैद खाने में निकल गए। सोचिए तो सही। हाँ, बड़ी रोशन तारीख है। मैं कितने लोगों का जिक्र करूं और कितने हवाले दूं। किस्सा मुख्तसर के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात मैंने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद पहले मुल्क के वजीर आजम बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दौरा करते पटना का, मुल्क के वजीर आजम थे, पटना का दौरा करते हैं, वहां एक जलसे से खिताब होना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बड़ी अहम बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस मुल्क की तारीख पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस कुर्बान, इस गवाही को याद रखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटना में, पटना का मैंने कहा था ना कि एक मोहल्ला था सादिकपुर, पटना का मोहल्ला था, पटना के लोगों से मुखातब होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोगों हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन लोगों याद रखना, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिंदुओं ने, सिखों ने, मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों को तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को रख दिया जाए। उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पल्ला भारी हो जाएगा, झुक जाएगा, और दूसरे लोगों की कुर्बानियों का पल्ला हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो मुल्क के वजीर आजम थे। और डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा था? इस मुल्क के 200 मुसन्निफ हैं, हाँ गैर मुस्लिम मुसन्निफ हैं, क्या कहा था? डॉक्टर ताराचंद ने कहा था, मुसाइल हदीसों की कुर्बानियों को दादे तहसीन पेश करते हुए डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि सच कहें तो इस मुल्क में तारीख तो अहले हदीसों की है। डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि सच कहें तो इस मुल्क में तारीख तो मुसलमानों ने कायम की है। यही वो जमात है जिसने कभी अंग्रेज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और यही वो जमात है जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए 8 लाख जानों का नजराना पेश किया। किसकी गवाही है? डॉक्टर ताराचंद की, गैर मुस्लिम मुसन्निफ है। कहना ये चाहता हूं मिंबर से खड़े होकर, और इस सोशल मीडिया के जरिए ईवानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क को संवारा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क को जीनत बख्शी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क की मदद की है। और जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है, इस मुल्क का दस्तो बाजू बना है हिंदुस्तान का मुसलमान। और जब 1947 में मुल्क बटा, 1947 में जब मुल्क तकसीम हो रहा था, कुछ मुसलमान थे जो बंटवारे के हक में थे, वो चाहते थे कि मुल्क बट जाए, तकसीम हो जाए, और वो हिजरत करके पड़ोसी मुल्क में चले गए, वो मुसलमान हिजरत करके पड़ोसी मुल्क में चले गए। लेकिन याद रखना,
وہ بھی ہندوستانی مسلمان تھا جو بٹوارے پر دکھی تھا، وہ بھی ہندوستان کا مسلمان تھا جو اس ملک کو بٹتے ہوئے تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس ملک کے بٹوارے پر دکھی و غمزدہ تھا، وہ اس ملک کو سندھ سے لے کر مدراس تک ایک ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کون تھے جس کی نمائندگی مولانا ابوالکلام آزاد کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جن کی نمائندگی مولانا ابوالکلام آزاد کر رہے تھے؟ جانے والے پاکستان جا رہے تھے، ہندوستان کے مسلمان پاکستان ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کیا تھا جو اردو خطابت کی تاریخ میں سب سے نمایاں خطاب ہے۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ملک کو بانٹنے والے فلسفے پر تنقید کرتے ہوئے اور پاکستان جانے والے مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا اور پورے ہندوستانی مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تقریر کے کچھ جملے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، خطاب تو سنیے مولانا آزاد کا۔ دلی کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، پاکستان لوگ جا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ ڈالی، میں نے قلم اٹھانی چاہی، تم لوگوں نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی۔ ارے یہ فرار کی زندگی جو ہجرت کے مقدس نام پہ تم لوگوں نے اختیار کی ہے، یہ فرار کی زندگی جو ہجرت کے مقدس نام پہ تم لوگوں نے اختیار کی ہے، دور اندیشی دیکھیے آزاد کی، مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ آج جو یہاں ہندوستان سے پاکستان گئے، آج ان کی حالت دیکھیے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج بھی ان کو مہاجرین کہہ کے پکارا جاتا ہے، کوئی عزت نہیں وہاں پر، آج بھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، ان کا کوئی مسکن نہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ مولانا کی دور اندیشی تھی، کہا یہ فرار کی زندگی جو تم لوگوں نے ہجرت کے مقدس نام پہ اختیار کی ہے، ارے اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ مسلمانوں، اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر سوچو کہ تمہارے فیصلے کتنے عاجلانہ ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ سوچئے مولانا ابوالکلام آزاد کہہ رہے ہیں دلی کی سیڑھی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ پاکستان جانے والوں سے کہا یہ دیکھو دلی کی جامع مسجد کی میناریں اچک کر تم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنے ماضی کی صفات کو کہاں گم کر دیا؟ ارے کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، کل کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج ہندوستان میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو خیف محسوس ہوتا ہے؟ ہاں دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے، دلی کو تم نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ ارے آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو، تمہارا وجود خود ایک زلزلہ تھا۔ آج تم اندھیروں سے کانپتے ہو، نہیں جانتے تم لوگ تمہارا وجود کبھی خود ایک اجالا تھا۔ ان بادلوں نے میلا پانی برسایا تو تم لوگوں نے بھیگ جانے کے ڈر سے پانچے چڑھا لیے۔ ارے وہ تمہارے اسلاف تھے، وہ تمہارے اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رونق ڈالا، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، بجلیاں آئی تو مسکرا دیا، آندھیاں آئی تو آندھیوں سے کہہ دیا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ ایمان کی جھانکنی ہے، یہ ایمان کی جھانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس قدر غافل ہو گئے جیسے خدا پر کبھی ایمان تھا ہی نہیں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ تقریر بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ تقریر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک سنگ میل اور ایک مشعل راہ ہے۔ اگر میں ابوالکلام آزاد کے ان جملوں کو اپنے لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کروں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان جانے والے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم تو پاکستان جا رہے ہو، تم تو ہجرت کر رہے ہو، لیکن اس بٹوارے کا نقصان یہ ہوگا کہ ہندوستان کا مسلمان بے وزن ہو کے رہ جائے گا، ہندوستان کا مسلمان بے قیمت ہو کے رہ جائے گا، ہندوستان کا مسلمان کمزور ہو کے رہ جائے گا۔ حضرات وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اس تقریر کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کو اس ملک کی تاریخ تسلیم کرے، مسلمانوں کی اس قربانیوں کو اس ملک کی تاریخ یاد رکھے۔ بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی، بہت بڑی ناقدری ہوگی اگر مسلمانوں کی ان قربانیوں کو اس ملک کی تاریخ فراموش کر دے، بہت بڑی ناقدری ہوگی۔ اس ملک کا مسلمان انصاف چاہتا ہے، انصاف۔ عدالتوں میں ہندو ہے تو الگ فیصلہ، مسلمان ہے تو الگ فیصلہ۔ یہ عدالتوں کی ناانصافی اس مسلمان کو تکلیف
देती है इस हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गमज़दा करती है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपना हक चाहता है, हक चाहता है, हिंदुस्तान का मुसलमान इंसाफ चाहता है। और नौजवानों, मैं आप लोगों से मुखातब होकर कहता हूँ, ये मुल्क हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, इसे गैरों का मुल्क मत कहो, गैरों का मुल्क मत। हम अकलियत में सही, हम थोड़े हैं, लेकिन 1400 सालों से इस मुल्क में रहते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने खून बहाया इसको आज़ाद कराने के लिए, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। अरे हमने माजी में इस मुल्क को बनाया, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में बनाएंगे। माजी में इसको संवारा है, कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी संवारेंगे, आइंदा भी इसके लिए कुर्बानी देंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस मुल्क के हक में बगावत के जज्बात मत रखो, बगावत के जज्बात मत रखो, बागियाना तहरीकों का साथ मत दो। इस मुल्क में मेमार बन के जियो, तकरीब का नहीं, मेमार बन के जियो। और दूसरी चीज़, जो मजहबी आज़ादी आप लोगों को मिली हुई है, इसका फ़ायदा उठाओ। इस मुल्क में ये दोस्तों कानून नहीं है कि सिर्फ जुमा के दिन नमाज पढ़ सकते हैं, नहीं नहीं, मजहबी आज़ादी है। इस मुल्क का कानून तो ये कहता है कि इस मुल्क का जो रहने वाला है अपना मनचाहा मजहब इख्तियार करके उसकी तबलीग कर सकता है, ये इस मुल्क का कानून है। यहाँ मुसलमानों मस्जिदों में आने पर कोई पाबंदी नहीं है, 5 वक्तों नमाज, 5 वक्त की नमाजों में आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमे में आ सकते हैं, दूसरे वक्तों की नमाज पर पाबंदी नहीं, नहीं नहीं, आ सकते हैं। अल्लाह के घरों को आबाद करो, जो मजहबी आज़ादी मिली हुई इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ, अल्लाह के घरों को आबाद करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह की बंदगी करो, और अल्लाह की बंदगी करते हुए रब के दीन को दूसरों तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं है कि हम नमाजी हैं, हम दीनदार हैं, अब दूसरे लोगों का थोड़ी हमने ठेका लिया, नहीं नहीं, आप खुद पहले नमाजी बनो, आप खुद पहले दोस्तों दीनदार बनो, और फिर दूसरों की फिक्र करो, दूसरों को पकड़ के दीनदार बनाओ, उनको दोस्तों भलाई की दावत दो, उनको भी मस्जिदों में पकड़ के लाओ। लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की हालात साजगार नहीं है कि यहाँ दावत का काम कर सके, क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की हालात साजगार नहीं है। अरे हिंदुस्तान की हालात मक्के के हालात से ज़्यादा ख़राब नहीं है। इब्ने मसूद तो यहाँ तक कहते हैं कि मक्के के हालात इतने ख़राब थे कि इस्लाम का नाम लेना जुर्म था, इस्लाम अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, लेकिन ऐसे माहौल में भी हम दावत का काम कर रहे थे, हम रब की तौहीद को लोगों तक पहुंचा रहे थे, कुरान के मिशन से लोगों को जोड़ रहे थे। इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह का वादा है, अगर दावत का काम करोगे, मेरी तरफ लोगों को बुलाओगे तो मैं इज्जत दूंगा, हिफाजत करूंगा। और इब्ने मसूद कहते हैं जानते हो लोगों, अल्लाह ने हमारी कैसे हिफाजत की, जब इतने कठिन माहौल में मक्के में हमने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, दावत और तबलीग का काम किया, तो अल्लाह ने कैसे हमारी हिफाजत की। मा दिलना आइद्दा मुंज़ु अस्लम उमर, इब्ने मसूद के जुमले, मा दिलना आइद्दा मुंज़ु अस्लम उमर, कहते हैं हम छुप छुप के लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, अल्लाह ने आइन उन दिनों में हजरत उमर को इस्लाम की दौलत दे दी, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, उमर ने इस्लाम कबूल किया। इब्ने मसूद कहते हैं हम सर झुका कर जी रहे थे मक्के में, उमर ने कलमा पढ़ा, सर उठा कर जीने लगे। मक्के में उमर का इस्लाम कबूल करना ये टर्निंग पॉइंट था मुसलमानों को, गोया उमर के जरिए अल्लाह ने इज्जत की जिंदगी दे दी। मुसलमानों, इस मुल्क में दावत का काम करोगे, अगर बिगड़े हुए लोगों को सुधारने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह इज्जत देगा अल्लाह आपको इस मुल्क में और हिफाजत करेगा। अरे फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं आज भी गर्दों से कितार दर कितार। अब भी लोग क्या कहते हैं, मैं दीनदार हूं, मैं नमाजी हूं, बाकी जो बिगड़े हुए थोड़ी मैंने ठेका। याद रखना अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है पहले खुद को संवारो, खुद नमाजी बनो, दीनदार बनो, नानेक बनो, और उसके बाद दूसरों की फिक्र करो, दूसरों की फिक्र करो। हाँ, दावत और तबलीग का काम होना चाहिए। और अल्लाह ऐसे लोगों को ख़त्म कर देता है जो सिर्फ खुद अपनी नेकी करके निकल जाते हैं मस्जिदों से चुप के। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को अल्लाह ने फरमाया मैं ख़त्म करता हूँ, और ऐसे इन लोगों की जगह पर ऐसे लोगों को लाता हूँ जो खुद भी नेकी का काम करते हैं और दूसरों को भी नेकियों की तरफ बुलाते हैं। ऐसे लोगों को मैं लाता हूँ। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। इसलिए दोस्तों इस सिलसिले में संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह कही और सुनी हुई बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को बसारत और बसीरत अता करे, जिसकी रोशनी में अपने रोशन और मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।